welcome to all of you to ASOL English learning class. So all of you, can you please come for once? सब एक बार आ जाएंगे. So 2 or 3 people are joining. सब लोग अपना एक बार म्यूट कर दो. अभी मैं बोलूँगा, जिससे मैं पूछूंगा वही बोलेगा. आप म्यूट कर दीजिए अपना. लक्ष्मी, जो आपका ये है लक्ष्मी नाम से. इज इट शौर्य? शौर्य है वहाँ पर क्लास में. हेलो शौर्य, हाउ आर यू? Oh yeah. So you are in which standard? Which class? Class third. You are in class third. Good. So nowadays when I am seeing new children, at least they could speak some better than us. What we used to speak. जैसा हम लोग बचपन में इतना नहीं बोलते थे. हालांकि मैं पब्लिक स्कूल में था, बट आजकल सब लोग इंग्लिश पे अच्छा स्ट्रेस देते हैं और बच्चे देख रहा हूँ. तो ओके, तो एक बार सब लोग आ जाओ, एक बार ऑनलाइन आ जाओ. ओके, सो आई विल स्टार्ट विद फर्स्ट विद अनुष्का. यूर अनुष्का, एम आई राइट? अनुष्का, आप अनुष्का हो बेटा? Yes, sir. ओके, तो बेटा अनुष्का अपने बारे में बताओ कुछ. अगर इंग्लिश में बताना इंग्लिश में, नहीं तो हिंदी में बताओ. Myself, Anushka Ramdev from class 5th A. ओके. I read in class 5th. My school's name is RDTS campus in Pulbahar. ओके. This is English medium school and both CBSE. ओके. एंड व्हाट डू यू लाइक? व्हाट आर योर हॉबीज? डू यू लाइक एनीथिंग? Yes. व्हाट डू यू लाइक? व्हाट, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम? कैसे स्पेंड करते हो टाइम? क्या पसंद है आपको? I like to reading, writing, playing badminton. So many things. So do you get time to do so many things? टाइम मिल जाता है इतना कुछ करने के लिए? सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. मैं कह रहा हूँ बेटा, टाइम मिलता है इतना कुछ करने के लिए? Yes, sir. मिल जाता है टाइम? Yes. ओके, चलो बहुत अच्छा है. चलो मैं आपके आता हूँ और एक बार जरा मैं शौर्य से पूछता हूँ. तो शौर्य बेटा आप बताओ. सुनीता, टेल मी मोर अबाउट यू. इंग्लिश में बोलना बेटा, इंग्लिश में बोलो. हिंदी में बोलना बोलो, कोई बात नहीं. ये क्लास तो इंग्लिश सीखने की है ना. जैसा आपको बोलना है बोलो, टेंशन मत लो. To the best of my knowledge, awareness, or my observance, once I was sitting my fancies, I thought why does everything need an introduction as long as I could comprehend that everything requires a little or lengthy process to come into existence in the same unbreakable rule of universe. After taking 9 months process, my mother produced me and I came into the world as name and kid. I am 9 years old and sit up here, study myself, and my father assists me in my study. Reside at 72 Rajinagar Tarme Road nearby Mohammed Studio Orai District Jalon UP 28501. Mr. Lakshmi Narayan is my father. I love him very much. He is a competent with plethora of certification in international business and had me dealing with US and UK clients. Sanford Direct, Sanford Sifa and Akbar is my father official mobile number and he is very kind, cooperative and helpful. My mother name is Mrs. Sarma. She is a homemaker and very kind. My hobby is garden. I love to watch cricket and Pokemon every evening after work. My dream is to travel all around the world. I plan to do this over the next 20 years. I have always loved with new people and learning about new cultures. Thank you. Nice better, nice. Good to see that you have memorized so much, and I am pretty impressed with you. And hats off to your father, who has made you like it's very rare to find kids of your age to speak so much well. I mean, so good. And I hope that we will also learn many things from you and your father. And beta, can you tell me more about when is your birthday, beta? Sorry, please speak little loud so Yeah. your voice should come clearly. Shaurya, when is your birthday? Happy birthday. 12th February. 12th February. Okay. So one thing, Shaurya, see,
व्हाट प्रॉब्लम डू यू फेस? क्या फे अभी जब मैं बोलूंगा ना तो शौर्य से, तो आप मत बोलिएगा बीच में, मेरे को शौर्य से बात करने दीजिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट ए टीचर शौर्य, आई एम योर फ्रेंड ऑल्सो। ओके, तो मुझे टीचर मत समझना, अपना बीड़ू समझना, अपना दोस्त समझना। आई एम योर बडी, यू आर माई बडी, आई एम योर फ्रेंड। ओके शौर्य? सो शौर्य, you have made me blank minded, and it's very difficult for you. It's very difficult for me to, I think, so you take me as your friend. Okay, I'm your friend now. So what problem you face is, what problem do you face in English? No problem, sir. You have no problems at all. Sir, Okay, so it's good. So ओके, तो बेटा आपको क्या प्रॉब्लम आती है अनुष्का इंग्लिश में कुछ? सर वर्ड समझने में मुझे प्रॉब्लम होती है। ओके, चलो बच्चों, अब हम लोग, मैं क्लास में शुरू करता हूँ, ठीक है? तो हम लोग वर्ब्स ही कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं शौर्य, अच्छा शौर्य सुनो मेरी बात, सबसे पहली बात शौर्य, तुम हाँ बोलो, फेस पे आके बोलो, मुस्कान बोलो, बोलो बोलो। सर आई एम अवनीश। ओ यू आर, ओके ओके अवनीश, ओ यू आर अवनीश, सॉरी। ओके अवनीश, हाय अवनीश, हाउ आर यू? अवनीश प्लीज आई एम इंट्रोड्यूस, फाइन। बेटा कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताओगे? माय नेम इज अवनीश। ओके एंड? माय क्लास नेम इज 5। ओके एंड? नेम इज मीना इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। Okay, you are in class 5. नेम इज Okay, that's enough. I just wanted to know about you, not about the name of your father or your mother. That's fine. See, when you are giving introduction, सबसे पहले, now many students have come. Muskan and Sandhya hasn't come. Okay, I think they will join. Muskan came here. So kids, now remember one thing. Muskan has come. So Muskan, okay, you are already there. Okay. So first, बेसिक, आज का जो बेसिक मैं एक चीज बता दूं सबको, ठीक है? और ये बात मैं पहले वाली क्लास में बता चुका हूं। सबसे पहले तो मैं आपका टीचर नहीं दोस्त हूं, ये समझ लो। दूसरी बात ये, कोई भी बात कहने में मुझसे घबराना नहीं है, हिचकना नहीं है। डोंट हेजिटेट, डोंट गेट स्केयर्ड विद मी। ओके, आई कैन नॉट कम टू योर प्लेस, सम ऑफ यू माइट बी 1000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मी, और माइट बी 1500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मी। तो 1000-1500 किलोमीटर दूर हो तो डरो मत, मैं फोन में आके तुमको मारूंगा तो नहीं, ठीक है? तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, नंबर 1। दूसरी बात ये कि बच्चों, अभी जो भी मैं तुमको किसी को कोई बात बोलूंगा तो मैं एज ए टीचर बोलूंगा, उसको बुरा कोई नहीं मानेगा। और मेरी जो बात है बच्चों वो तुमसे होगी, और किसी के भी पेरेंट्स को पीछे से मत बुलवाना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमसे बात करूंगा, ठीक है? तो जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, सबसे पहली चीज, ज्यादा मत बताओ अपने बारे में, जस्ट से आई एम दिस एंड बस। जैसे मेरे को कहना है आई एम निखिल, तो माई तो पहले छोड़ दो, माई नेम इज, ये बहुत हम लोग बचपन से पढ़ते आए, तो माई नेम इज करके कभी नहीं बोलना, बोलना है हमेशा आई एम। और क्या है, जैसे मैं बोलूंगा हे आई एम निखिल सबलानिया, ओके, मेरे से किसी ने पूछा, मान लो मैं 12th क्लास में बोलूंगा आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, बस, दैट्स इनफ। गिव मोर इन्फॉर्मेशन व्हेन आस्क्ड, डोंट गिव सो मच इन्फॉर्मेशन व्हेन नॉट आस्क्ड। ज्यादा इन्फॉर्मेशन मत दो, ठीक है? और ज्यादा बात को लंबा मत खींचो, मैं भी इस बात को लंबा नहीं खींचूंगा। और मैं क्लास में आता हूं तो हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेके क्लास चल रही थी, तो सबसे पहले मैं अनुष्का से शुरू करूंगा। तो बेटा अनुष्का, आपको कुछ आइडिया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का? है नहीं है? जिससे पूछूं यस और नो जल्दी से बोल दो। आपको कुछ आइडिया है फ्यूचर? ओके बेटा बताओ। सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी होती है जिन टेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि सब आते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। तो ये बताओ कि उसको, अब मैं आपको एक सेंटेंस बोलूंगा, आपको मुझे सेंटेंस में बताना है इसका, ठीक है? मैं रात 9 बजे तक डिनर कर चुका होऊंगा, या मैं रात 9 बजे तक, बेटा आप शौर्य अपना बंद कर दो, बेटा म्यूट कर लो इसको, नीचे से जो माइक बना हुआ है उस पर प्रेस करके। तो अभी
सिर्फ जिससे मैं पूछूंगा वही अपना माइक ऑन करना, ठीक है। तो सबसे पहले अनुष्का बेटा आप बताओ कि मैं रात 9 बजे तक डिनर कर चुकी होंगी, कैसे बोलोगे? I have, हम्म I will have हम्म done the homework. I have done the डिनर dinner. 9 बजे तक, रात 9 बजे तक। ओके, कोई बात नहीं, चलो आज छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मैं अब अवनीश पे आता हूँ। बेटा अवनीश आप बताओ कैसे बोलोगे मैं रात 9 बजे तक डिनर कर चुका हूँगा? I shall have done to dinner 9 o'clock. Since 9 o'clock. अरे वाह, क्या बात है, आपने तो आई शैल हैव लगा दिया। वेरी गुड बेटा। अच्छा अब आप बताओ, आ जाओ बेटा। शौर्य आप बताओ कैसे बोलोगे मैं रात 9 बजे तक डिनर कर चुका हूँगा? शौर्य आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ शौर्य बोलो 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 बेटा। मैं रात को मैं रात को 9 बजे तक डिनर कर चुका हूँगा, बोलो बेटा। मैं रात को 9 बजे तक डिनर खा चुका हूँगा, ये बताओ। अच्छा चलो ये मैं अभी गिरीश से पूछता हूँ। बेटा गिरीश बताओ। I shall have eaten the dinner हम्म at 9 p.m. आई शैल हैव टेकन द डिनर या ईटन द डिनर? आई शैल हैव ईटन। हाँ I बोलो। shall have हाँ ईटन, आई शैल हैव ईटन बोलो बेटा। ईटन, I shall हैव ईटन। अच्छा चलो अब क्या कहते हैं, तो देखो इसके अंदर क्या था, अवनीश ने शेल लगाया जो कि हमारी अनुष्का ने नहीं लगाया था। food. कोई बात नहीं बेटा, अगर जल्दी नहीं बोला जाए तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, चीजें धीरे धीरे दिमाग में आएंगी। हाँ इसमें बाय भी लगेगा ना? हाँ बेटा मैं समझा लगेगा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। ओके सर। बाय कब लगेगा? बाय लगेगा जब मैं कहूँगा कि मैं 9 बजे तक खाना खा चुका हूँगा, तो जब मैं तक की बात करूँगा कि इतने समय तक, तो बाय लगेगा। बाय देन, बाय 9 o'clock, बाय रात को 9 बजे के लिए क्या बोलूँगा? यश बताओ, क्या शौर्य बताओ, रात को 9 बजे के लिए क्या बोलूँगा? 9 AM 9 PM? सर 9 p.m. वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने कहा रात को 9 बजे तक, तो 9 बजे तक के लिए 9 PM आई शैल हैव, आई शैल हैव, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेन चीज थी, मैंने आप सबसे जो सेंटेंस पूछा, ये हमारी क्लास मेरे ख्याल से 3-4 दिन से चल रही थी, और गिरीश इस क्लास में था, संध्या थी इस क्लास के अंदर, डॉक्टर मनोज हैं वो आते हैं, वो भी ये क्लास लेते हैं, और कल मुस्कान आई थी क्लास के अंदर। तो इसके अंदर जो मेन बात समझने की है, आप लोगों को पता है, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को ये आता है। मेरी मम्मी ने तो मुझे क्लास 1 से क्लास 5 तक बुक्स ला के दी थी, पर मैं नहीं पढ़ता था, कि बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को पता है। देखो पहले मैं एक चीज बता दूं सबको, जो लोग ऑलरेडी हैं उनको बता चुका हूं कि इस क्लास में आने का पर्पस क्या है और ये क्लास किस लिए है। ये क्लास आपको एक एनवायरनमेंट दे रही है, एक माहौल देगी इंग्लिश का। नंबर 1, रटना कुछ नहीं है, किसी भी बच्चे को कुछ रटना, क्रैमिंग नहीं करना है। कुछ कुछ चीजें हैं जो हम धीरे धीरे मेमोराइज करेंगे और धीरे धीरे हम एक्सरसाइजेस के थ्रू उससे रूबरू होंगे। उसको हम एक नॉर्मल, जैसे हमारी हिंदी या दूसरी लैंग्वेज होती है, सो वी विल मेक इट और लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, बट स्लोली स्लोली। ये नहीं है कि हम एकदम से कोई अमेरिकन या इंग्लिश जैसे लोगों जैसे नहीं बन सकते, तो उतना बनने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हम बनेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर यही है, आज नए बच्चे आए, थोड़ी सी क्लास लंबी स्ट्रेच होगी, तो इसके अंदर यही है कि आई, सुन लो ध्यान से सुन लो, आप सबको पता है आई और वी के साथ शेल लगेगा, हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, और फिर आखिरी में कोई ऐसा वर्ब, एक और वर्ब आ रहा है तो उसमें एस लग जाएगा आखिरी, ठीक है। मैं इसके पहले की क्लासेस
जिसकी भी पेमेंट आती जाएगी मैं उसको पुराने वीडियोस भेजते जाऊंगा, वीडियोस देख लेना। हम मौजूदा क्लास से स्टार्ट करेंगे, पहले की क्लासेस को भी धीरे धीरे, जो लोग नए आएंगे उनकी अलग से सेपरेट क्लास रख के वीडियो एक बार देखने के बाद, टेस्ट लेने के बाद फिर क्लासेस रखी जाएंगी। और वो ऐसे वर्बल टेस्ट ही होगा, मैं आपसे सिंपल पूछूंगा और आपको जवाब देना है, ठीक है। तो अब जैसे आपने बोल दिया कि आई शैल हैव या वी शैल हैव, और आई और वी को छोड़ के अब मैंने पूछता हूं, मान लो अभी यहाँ पर ये सपना, ये क्या कहते हैं, सपना नहीं है आज, तो चलो मैं पूछता हूँ कि मैं अनुष्का से पूछता हूँ, ठीक है। अब तुम्हें कहना है तुम आपको कहना है कि तुम रविवार तक इसे लिख चुके होंगे, तुम रविवार तक इसे लिख चुके होंगे। कैसे बोलोगे बेटा? या आप रविवार तक इसे लिख चुके होंगे? You will have हम्म written this since Sunday. सिंस नहीं बेटा, बाय संडे। वेरी By गुड, Sunday. क्लैपिंग हो जाए एक बार अनुष्का के लिए सब बच्चे। अनुष्का ने देखो कितना अच्छा बोल दिया, और ये बहुत अच्छी बात है, मैं भी क्लैपिंग करता हूँ, ठीक है। तो अनुष्का ने बोला यू विल, तो आई और वी के साथ हम शेल लगाते हैं, बाकी यू, ही, शी, इट के साथ विल लगा देते हैं। अब शौर्य से अगला क्वेश्चन है। शौर्य, आप इसी चीज को क्वेश्चन की फॉर्म में बोलोगे, क्या तुम रविवार तक इसे लिख चुके होंगे? कैसे बोलोगे शौर्य? देखो बच्चे के, अगर आप पीछे बैठ के अगर बता रहा है तो उसे ना बताएं, अगर ये है। बताओ बेटा, क्या तुम रविवार तक इसे लिख चुके होंगे? क्वेश्चन है। अवनीश बताओ, क्या तुम रविवार तक इसे लिख चुके होंगे? अवनीश बेटा बताओ। You will have गिरीश नहीं, अवनीश, अवनीश, गिरीश रुको एक मिनट। अवनीश बताओ, क्या तुम रविवार तक इसे लिख चुके होंगे? चलो गिरीश बताओ। हाँ बताओ, कौन बता रहा है? बताओ, बोलो अवनीश बोलो, गिरीश बोलो। हाँ बोलो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी शायद आवाज प्रॉब्लम हो रही है, दोबारा बोलो। देखो अगर किसी को बोलने में प्रॉब्लम है और कोई अगर लिखना चाहता है तो अपना आंसर मैं हाई लिख के भेज रहा हूँ चैटिंग में, ऐसे हाई में लिख के भेज सकते हो, मैं पढ़ लूंगा, ठीक है। बोलो बेटा बोलो। you will have written by the Sunday. अच्छा बेटा, अपना फेस दिखाओ, मैंने आपका पूरा फेस नहीं देखा पहले। आपका बड़ा प्यारा सा फेस है, मैं आपका प्यारा सा फेस तो देखो, कि दूर लेके जाओ कैमरा को। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बेटा, आपने ठीक बोला है, थोड़ी सी ये गड़बड़ कर दी है, मैं गड़बड़ अभी आपकी सही करता हूँ। जरा पहले देखूं गिरीश क्या बोलता है, क्योंकि गिरीश ये ऑलरेडी क्लास अटेंड कर रहा है। सो गिरीश बताओ बेटा, So what is the question? क्या तुम रविवार तक इसे लिख चुके होंगे? You will have written this अच्छा शौर्य, आपको आया दिमाग में? by Sunday. शौर्य आपको दिमाग में आया? Sir, will you have write this by Sunday? ये कौन बोल रहा Sir, है? बीच में ये कौन Sir, बोला? मुस्कान. मुस्कान बेटा वीडियो में आओ ना, मैं आपका इतनी बार नाम लिया, आप आ नहीं रहे बेटा वीडियो में। वीडियो में आ जाओ, सब लोग वीडियो में आएंगे ना तभी तो मेरे को पता लगेगा। मुस्कान ने सही पकड़ा है, सब मुस्कान के लिए क्लैप करो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे बाद सबसे बड़ी मुस्कान है, और आप सबसे बड़े, और शायद मुझसे ही बड़े और भी लोग हैं जो कि वीडियोस के थ्रू सीख रहे हैं, ठीक है। तो विल यू हैव रिटन दिस बाय संडे? वेरी गुड। तो जब अब हमने क्वेश्चन किया तो आप सबने बोला आई विल हैव, यू विल हैव, शी विल हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई और आगे आपने अपनी बात करी। लेकिन जब आप इसमें क्वेश्चन करोगे तो विल को पहले लगा दोगे। अब मैं एक और क्वेश्चन करता हूं इसके अंदर। अब हम इसका सबसे पहले अभी
अवनीश से शुरू करूंगा ये वाला क्वेश्चन। क्या वह स्कूल में दाखिला ले चुका होगा? अवनीश बताओ बेटा, क्या वह स्कूल, और ये वो कहाँ है? संध्या क्या है? मुस्कान, संध्या क्यों नहीं आई आज? पता नहीं सर। अच्छा, उसे बोलना। चलो बताओ, ओके सर। बोलो बेटा अवनीश, क्या वह एक स्कूल में दाखिला ले चुका होगा? Can I have? नहीं बेटा, आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, आप अपनी बात नहीं कर रहे कि मैं ले चुका हूँगा। क्या वह ले चुका होगा? वह सामने वाले की बात हो रही है। लड़का है, ही मान लो, ही है वो। हाँ, Will he have विल ही, admission at the school? विल ही हैव, Will he have हाँ। admission by the school? बाय, नहीं, चलो चलो चलो, अभी यश इस पे शौर्य आ गया, शौर्य से पूछता हूँ। बेटा तुम बताओ, क्या वह स्कूल में दाखिला ले चुका होगा? शौर्य बताओ कैसे बोलोगे? तो सेंटेंस है, क्या वे मैच का परिणाम घोषित कर चुके होंगे? बताओ गिरीश, क्या घोषणा करने को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? घोषणा कर रही, सरकार ने घोषणा करी। किसको पता है इसका मीनिंग? जिसको भी पता है बोल दो। किसको पता है घोषणा का? अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट, वेरी गुड। चलो, अनाउंसमेंट को घोषणा बोलते हैं। अब ये है घोषित किया, ठीक है। चलो बोलो, क्या वे मैच की घोषणा कर चुके होंगे? क्या वे मैच की घोषणा कर चुके होंगे? अवनीश बोलो। हाँ, कौन बोल रहा है? गिरीश बेटा वीडियो पे आ जाओ, वीडियो पे आके बोलो। हाँ बोलो। वी शैल हैव, आगे। क्या वे मैच की घोषणा कर चुके होंगे? अच्छा चलो, अभी नहीं बेटा, वी शैल हैव नहीं होगा। अच्छा वो बताओ, बताओ बताओ अनुष्का बताओ। Will they have announced the result of match? वाह क्या बात है, आपको तो बहुत अच्छा आता है। चलो अब अगला बताएगा मुस्कान, अभी शायद नेटवर्क की वजह से नहीं है। अवनीश बताएगा। अवनीश बताओ, क्या वह डेनमार्क जा चुका होगा? विल दे हैव अनाउंस द रिजल्ट ऑफ द मैच। ये लोग लिख लो जिसको, अच्छा कॉपी और पेंसिल भी लेके बैठना है, या कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है। चलो आ गई, ये आ गई। अभी मुस्कान चली गई थी, अभी तो अवनीश बताएगा। क्या वह डेनमार्क जा चुका होगा? बताओ अवनीश, बोलो बेटा अवनीश। Will they? नहीं बेटा, एक आदमी की बात हो रही है, एक आदमी की। क्या वह जा चुका? बोलो। विल ही हैव, वेरी गुड। हाँ बेटा, आप गॉन टू डेनमार्क, वेरी गुड। देखो अवनीश ने तो एकदम सही बोल दिया, विल ही हैव गॉन टू द डेनमार्क। चलो अब अगला क्वेश्चन सुनीता से है। सुनीता कह रहा हूँ, क्या है, मुस्कान से अगला क्वेश्चन। क्या वह अपनी यात्रा शुरू कर चुका होगा? बताओ मुस्कान, क्या वह अपनी यात्रा शुरू कर चुका होगा? अबे ये क्या हो गया, ये कौन आ गया क्लास में? ये संध्या है, ये संध्या का भाई है। संडे को मोबाइल मम्मी मार्केट गई थी तो आज इसलिए वो क्लास नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा चलो बताओ, अभी किसकी बारी है? मुस्कान बताओ। सर एक बार क्वेश्चन ये है, क्या वह अपनी यात्रा शुरू कर चुकी होगी? लड़की है बेटा, लड़की है। क्या वह अपनी यात्रा शुरू कर, विल शी हैव स्टार्टेड। स्टार्ट का थर्ड फॉर्म हो गया स्टार्टेड।
हर जर्नी, वेरी गुड, कितनी अच्छी बात है, एकदम सही जवाब दे दिया। थोड़ा सा बस एक स्टार्ट को स्टार्टेड नहीं बोला था, अदरवाइज ठीक दे दिया। विल शी हैव स्टार्टेड हर जर्नी, और लड़के के लिए विल ही हैव स्टार्टेड हिज जर्नी। ठीक है, चलो अभी कौन है बोलेगा? ये शौर्य तो लग रहा है क्लास में नहीं है अभी। चलो अवनीश कह रहा है मैं बोलूंगा। अवनीश अभी अनुष्का से पूछता हूँ, अगला आपसे पूछता हूँ। अनुष्का बताओ, क्या वह कुछ फल लाएगी? क्या वह कुछ फल लाएगी? 1 minute, sir. क्या वह कुछ फल लाएगी? Will she have bring? Will she have brought some fruits? अच्छा, ये अवनीश बताओ, आप क्या बोलोगे इसके लिए? क्या वह कुछ फल लाएगी? क्या बोलोगे अवनीश? Will she have brought some fruit? मुस्कान क्या बोलोगे? Sir, will she have? विल शी हैव? गिरीश बोलो बेटा, क्या बोलोगे? बोलो गिरीश। Will she have roast? ब्रॉट, ब्रॉस्ट क्या होता है? ब्रॉट होता है। हाँ, Brought fruits? वेरी गुड। तो कितनी अच्छी बात है कि सबने बहुत अच्छे बोला, और मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ आप सभी बच्चों से कि आप सब बच्चे इतना अच्छा पढ़ाई करते हैं। चलो अब अगला मुस्कान, अब अगला गिरीश से है पहला। ठीक है, क्या तुम मुझे पत्र लिख चुके होंगे? गिरीश बताओ, क्या तुम मुझे पत्र लिख चुके होंगे? क्या तुम मुझे पत्र लिख चुके होंगे? Will you have written the letter? Will you have written me a letter? Will you have written me a letter? ठीक है, अब अगला है अवनीश से। क्या वह अपनी पढ़ाई की योजना, थोड़ा मैं मुस्कान से करूंगा ये वाला, अवनीश से मैं दूसरा करूंगा। मुस्कान बेटा ये बताओ, क्या वह अपनी पढ़ाई की योजना बना चुका होगा? ये बताओ, क्या वह अपनी पढ़ाई की योजना बना चुका होगा? क्या वह अपनी पढ़ाई की योजना बना? विल ही, हाँ विल ही। देखो सब लोग ना, अगर फोन को लेके कोई इधर उधर हिलेगा तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी, इसलिए कोई भी फोन को इधर उधर मत हिलाओ, एक जगह रख के बात करो सब। बोलो, अगर वाईफाई पे है तो भी वो प्रॉब्लम आती है। बोलो दोबारा, आवाज नहीं आई बेटा, दोबारा बोलो। क्या वह अपनी पढ़ाई की योजना, क्या वह अपनी पढ़ाई है अभी बेटा? हाँ हाँ, अच्छा मैं आप पे आता हूँ। आपका सही है, सिर्फ एक थोड़ा सा आप चूक कर गए, बाकी सही है आपका। आप क्या कह रहे थे? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। Will he have हाँ, made the plan of her study? नहीं, विल ही की बात हो रही है तो हर क्यों आ गया? विल की बात हो रही है बेटा, हर नहीं आएगा। ये कोई बात नहीं, आपने भी लगभग सही बोला है, थोड़ी मिस्टेक हो गई। विल ही हैव मेड ए प्लान फॉर हिज स्टडीज? विल ही हैव मेड ए प्लान फॉर हिज स्टडीज? अब अगला मुस्कान बताएगी। वह मेरे घर पहुंचने से पहले क्यों लौट चुकी होगी? क्या लौट चुकी होगी? क्यों? अच्छा, हाँ अब देखो 3 क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले मुस्कान से, वह मेरे घर पहुंचने से पहले क्यों लौट चुकी होगी? अब इसके अंदर एक बात समझ लो,
अभी तक तो हमने सिंपल क्वेश्चन करा था, ठीक है, सब सुन लो। तो हमने विल से शुरू कर दिया था, विल ही हैव, विल रखा, सब्जेक्ट रखा, हैव या विल ही हैव, शी हैव या विल शैल आई हैव, ऐसे कर लिया। अब जो होगा ना, अब आपको क्वेश्चन वाले जो वर्ड है वो भी इन सेंटेंसेस में आएंगे। वो कौन से वर्ड है? वाई, व्हाट, हाउ वाले, ठीक है, वाई, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, ये सब आएंगे। इनको आप पहले रख के बताओगे। तो सबसे पहले मुस्कान से है, वह मेरे घर पहुंचने से पहले क्यों लौट चुकी होगी? बताओ, वह मेरे घर लौटने से पहले क्यों पहुंच, हाँ वाई, कौन बताएगा? और सेंटेंस है क्या, वह मेरे पहुंचने से पहले क्यों लौट चुकी होगी? बोलो, कौन बोल रहा है? Why will he have? वह मेरे लौटने से पहले क्यों पहुंच चुकी होगी? Why will he have? Why? और कौन Why बोलेगा? will she? वाई विल, Why will she have? सी नहीं, सी नहीं बोलते, शी, हाँ, She have returned to my home. वाई विल शी हैव रिटर्न, मेरे To my पहुंच, home. उसने कहा मेरे पहुंचने से पहले, उसने नहीं कहा कि टू माई होम, मेरे घर पहुंचने से पहले नहीं बोला, उसने कहा मेरे पहुंचने से पहले। पहुंचने को क्या बोलेंगे? मैं कहीं पे पहुंचा। अच्छा, सिंपल चीज है, मैं पूछूंगा अभी, गिरीश से पूछूंगा, गिरीश तुम बताओ, मैं वहां पहुंचा, सिंपल लैंग्वेज बोलना, मैं वहां पहुंचा। तो गिरीश इसको कैसे बोलोगे? हैज, हैव, हैड कुछ नहीं आएगा। मेरे को सिंपल ये पता करना है कि आप कैसे बोलोगे पहुंचने को। बताओ गिरीश, कैसे बोलोगे? या आप बताओ, क्या नाम है आपका बेटा? आज जो आप आए हो ना, क्या, अनुष्का, अनुष्का बेटा बताओ, मैं वहां पहुंची कैसे बोलोगे? मैं वहां पहुंची। हाँ, I arrived here. अच्छा आप बताओ कैसे बोलोगे? मुस्कान, आप बताओ कैसे बोलोगे? मैं वहां पहुंची। बेटा ज्यादातर पहुंचने को हम रीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीच। मेरी पहुंच वहां तक नहीं है। आई डोंट हैव रीच देयर। मैं वहां पहुंचा, आई रीच देयर। हाँ बोलो। सर अब आपने बता दिया। अच्छा, आप बोलने वाले थे। तो आपका सेंटेंस था, वह मेरे पहुंचने से पहले क्यों लौट चुकी, क्यों लौट चुकी होगी? तो सही है। इसके अंदर वाई के बाद किसी ने बीच में बोला था, वाई के बाद शी बोल दिया था, वाई शी विल। वाई शी विल नहीं, पहले वाई लगाओ या व्हाट लगाओ, जो भी जैसा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद विल लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ। वाई विल शी हैव, फिर हैव लगा दो। वाई विल शी हैव रिटर्न बिफोर, पहले माने बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले, ठीक है, बिफोर आई रीच, रीच नहीं, आई रीच। मैं तब तक अपना काम कैसे समाप्त कर चुकी होंगी? कौन बताएगा इसको? मैं तब तक अपना काम कैसे समाप्त कर चुकी होंगी? जिसको आ रहा है पहले बोल दो दिमाग में। मैं तब तक अपना काम कैसे समाप्त कर चुकी होंगी? किसी ने मुझसे कहा, भैया आज रात को 9 बजे तक ये काम खत्म हो जाना चाहिए, और मैंने बोला मैं तब तक अपना काम कैसे समाप्त कर चुकी होंगी, या मैं तब तक ये काम खत्म कर लूंगी। बताओ कौन बोलेगा? मैं तब तक अपना काम समाप्त कर चुकी होंगी, कौन बोलेगा? जिसको आ रहा दिमाग में बोल दो पहले, लेकिन पूरा सेंटेंस बोलना, आई उई करके आधा अधूरा मत बोलना, पूरा बोलना। मैं तब तक अपना काम कैसे समाप्त कर चुकी होंगी? मैं तब तक अपना काम कैसे समाप्त कर चुकी होंगी? बोलो, जिसके दिमाग में आ रहा है बोल दो, मुझसे मत पूछो, मेरे को आवाज नहीं आई अभी किसी की। How shall I have complete his homework? बेटा हाउ शैल आई, How shall I have हाउ शैल, complete his homework? हाउ शैल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय देन। हाउ शैल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क
बाय देन मैंने क्या कहा था तब तक, बाय देन हाउ शैल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, बाय देन बाय देन बाय देन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, Okay. लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तुम मेरे आने से पहले कैसे पहुंचोगे? जिसको आ रहा है वो आंसर दो पहले। तुम, मेरे से किसी ने बात करी, मैं किसी से बात कर रहा हूं, ठीक है, और मैंने उससे पूछा तुम मेरे आने से पहले कैसे पहुंच चुके होंगे, क्योंकि वो मुझसे कह रहा था अरे यार मैं तो इतना काम में बिजी हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो मैंने उससे बोला तुम मेरे आने से पहले कैसे पहुंच चुके होंगे। You will have before I reach. नो, नेक्स्ट नेक्स्ट, कौन बोलेगा? तुम मेरे आने से पहले कैसे पहुंच चुके होंगे, तुम मेरे आने से पहले कैसे पहुंच चुके होंगे। How would you have? वुड तो आएगा ही नहीं, अभी वुड तो इसमें है ही नहीं, विल्ली विल लगना है। How will you have asked before I came? आस्ट क्यों होगा? मैंने पूछने की तो बात नहीं करी, मैंने कहा तुम मेरे आने से पहले कैसे पहुंच चुके होंगे। पहुंचना, मेरी पहुंच वहां तक नहीं है, माई रीच इज नॉट देयर। Reached before I came. हाउ विल यू हैव रीच्ड बिफोर आई केम, कम क्या आएगा? केम आएगा, कम आएगा? Came. केम क्यों आएगा? Come. कम क्यों आएगा? सर आपकी थर्ड फॉर्म है सर, क्योंकि सर कम आएगा क्यों आएगा? सर, क्योंकि कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपने रीच्ड में कर दी ना। परफेक्ट टेंस चल रहा है, आपने क्या दिया, हाउ विल यू हैव रीच्ड, तो रीच्ड तो आपने थर्ड फॉर्म कर दी। तो फिर उसके बाद जब एक बार आपने थर्ड फॉर्म कर दी तो दोबारा क्यों डालोगे थर्ड फॉर्म? सर क्योंकि जब आफ्टर और बिफोर वाले टेंसेस आ जाते हैं तो उसमें टू सेंटेंसेस जुड़े हुए होते हैं, इसलिए। ये बात पक्की है? यस सर। किसने बताया? सर मैं ट्यूशन पढ़ती हूँ, वहाँ पे अच्छा, बताया गया। दो सेंटेंस तो आ गए, लेकिन दो सेंटेंस में एक नॉर्मल लॉजिक है कि अगर दो सेंटेंस के अंदर मैं ऑलरेडी एक बार अपने पास्ट का बता चुका हूं तो क्या मैं दोबारा भी वही चीज पास्ट में बताऊंगा? देखो इसमें क्या है, सेंटेंस को समझो, ये सब लोग समझो। मैंने कहा तुम मेरे आने से पहले कैसे पहुंच चुके होंगे, तो परफेक्ट क्या हो रहा है कि काम हो चुका होगा। परफेक्ट का सेंस क्या है, वो काम हो चुका होगा, और काम कौन सा हो चुका होगा, वो परफेक्ट होगा, और उसके अंदर ही थर्ड फॉर्म लगेगी। अब मैंने कहा तुम मेरे आने से पहले, तो मेरे आने से पहले हो सकता है वो पहुंच जाए, उसकी मैं बात कर रहा हूं कि तुम मेरे आने से पहले कैसे पहुंच चुके होंगे। तो एक तो काम हो गया मेरे आने का, और एक हो गया कि वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अब वो कह रहा है पहुंचूंगा, तो हो सकता है कि, लेकिन ये बात वो कह रहा है हाँ भैया मैं पहुंच चुका हूँ, ये काम परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट मतलब ये काम होगा, परफेक्ट का सिंपल मीनिंग है कि ये काम होगा, तो वो होगा। तो मैंने उसके अंदर जो मेरा स्टाइल चलता है, जो इंग्लिश का जो मेरा ग्रामर चलता है, आई शैल हैव रीच्ड देयर, आई शैल हैव। सो मैंने कहा हाउ, अब मैंने उससे बोला तो क्या बोला, हाउ विल यू रीच देयर बिफोर आई कम। तो एक नॉर्मल मैं आपको बताता हूं कि जब एक बार हमने रीच कर दिया है ना, अब उसके बाद जो वर्ब आ रहा है उसमें थर्ड फॉर्म बार बार नहीं लगाते। ये एक सिंपल लॉजिक है, तो इसलिए मैंने बिफोर आई कम। ठीक है, इससे पहले वाला जो सेंटेंस था उसमें देखो, एक पहले आपसे सेंटेंस पूछा था, वह मेरे पहुंचने से पहले क्यों लौट चुकी होगी, और मैंने इसमें बोला था वाई विल शी हैव रिटर्न बिफोर आई रीच। बिफोर आई रीच नहीं बोला,
क्योंकि एक बार मैंने लगा दिया, क्या लगाया मैंने लगाया वाई विल शी हैव रिटर्न। तो रिटर्न जो वर्ब है उस वर्ब पे एक बार थर्ड फॉर्म लगा दिया, पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया, तो उसी सेंटेंस में दोबारा जो एक और वर्ब आ रहा है उसमें जरूरी नहीं होता लगाना, और जनरली उसमें नहीं लगाते, बार बार नहीं लगाते, एक बार लगाते हैं। तो उसमें क्या आता है, वह मेरे पहुंचने से पहले क्यों लौट चुकी होगी, वह मेरे पहुंचने से पहले क्यों लौट चुकी होगी, वाई विल शी हैव रिटर्न। तो इसमें पहले काम कौन सा होगा, वह मेरे पहुंचने से पहले क्यों लौट चुकी होगी, मतलब वो लौटेगी पहले। ये जो पहला काम है, ये परफेक्ट काम है जो होगा, मेरे पहुंचने से पहले वह लौट चुकी होगी। बाकी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्यों लौट चुकी होगी, लेकिन काम ये कि वो लौट चुकी होगी। वाई शील हैव रिटर्न बिफोर आई रीच, मेरे पहुंचने से पहले। ठीक है, तो कल करेंगे क्लास, और कल क्लास शुरू करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सबका आने के लिए, और कल आइए, जो लोग आज आए क्लास में, कल हम मिलते हैं 5 बजे।